पुराने दहशतगर्दी की तंजीमें या पुराने लोग जो एक ज़माने में अब अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लड़ रहे थे और अब फारिग बैठे हैं, उनको फंड करके इन्होंने ये असैसिनेशंस पाकिस्तान की सरजमीन पे किए हैं। कनाडा में कनाडा के वजीर आजम ने कहा है कि भारत ने वहां के क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा दे के एक्सटॉर्शन से लेके कत्ल करने तक इस किस्म के एक्टिविटीज में मुलविस है सिख एक्टिविस्ट के खिलाफ। सिमिलरली अमेरिका में जिस केस का आपने जिक्र किया कि वहां भी एक सिख एक्टिविस्ट को टारगेट किया है, इसी तरीके से दूसरे ममालिक है, ऑस्ट्रेलिया एसेट्रा, जहां भारत का दहशतगर्दी, भारत का असैसिनेशन कैंपेन सामने आया है। हम भारत से ये मुतालबा करते हैं कि वो दहशतगर्दी या टेररिज्म इज अ टूल ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी, इनको ये रवैया ख़त्म करना पड़ेगा, ये आदत रोकना पड़ेगा। कोई भी सुपर पावर या कोई भी सिविलाइज ममालिक इस किस्म की एक्टिविटी में एंगेज नहीं होते, चाहे वो खालिस्तान क्या या सिख एक्टिविस्ट को कत्ल करने की ये साजिश हो, या बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को फंड करने के तरीक़ेकार हो। ये अगर अमन कायम करना है, दुनिया भर में स्टेबिलिटी कायम करना है, तो भारत को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बन के इस किस्म के काम रोकना पड़ेगा। Tanzania News. On one side, Pakistan is doing good diplomacy with these beautiful diplomats. Last night, Jay Shankar issued a statement. I don't know if you've seen it yet. He said, India is ready to strike deep into Pakistan again. That's the statement from the foreign minister of India. What's Pakistan's stance on this? And will Pakistan fight back again if they launch another strike? Thank you for your question. I think Mr. Jaishankar speaks like a warmonger and not a diplomat. If he believes that threatening nuclear war is diplomacy, then India's problem isn't Pakistan. It's extremism inside its own cabinet. Pakistan categorically rejects these recycled allegations. It is ironic that a country with a sitting prime minister whose reputation speaks for itself would, and particularly given the question that I was just asked by the gentleman just before you about the Indian government's role in assassinating the world, dares to lecture Pakistan, who is a victim on terrorism, on terrorism. Threatening missile strikes and boasting about escalation is not a display of strength. It's a dangerous sign of regional instability. The world must ask, who is the aggressor? Pakistan responded with restraint. India continues to brag about war. Even India's military has walked back its initial lies. Pakistan's Air Force defended its airspace effectively. If Jai Shankar is so enamored by Google Images, I suggest he Google what's his name? Abin Andan Chaiwal. Pakistan has asked for evidence. We have nothing to hide. If India has proof linking the April attacks to Pakistan, Pakistan's soil, Pakistani group, let them share this with the international community. To this day, India has been unable to share the names and identifications of the so-called terrorists involved in the terrorist attack in occupied Kashmir with their own people, with their allies, or indeed with Pakistan. The truth is, India knows that Pakistan had nothing to do with this attack. This is why they refused the Prime Minister's call for an international inquiry. And this is why, to this day, they're hiding the truth from their citizens. The reality is this was indigenous terrorism within Indian-occupied Kashmir. This was a secure intelligence failure of the Indian government. And the Indian government launched a war based on a lie to
cover up their ineptitude. We continue to pursue peace from Kartarpur to the ceasefire. India continues to pursue propaganda, polarization, and war. We want peace, stability, and regional integration. What we see from New Delhi's election time jingoism dressed up as foreign policy. Pakistan won't be baited into war theatrics. We will defend ourselves if attacked, but we do not crave conflict. इरफानुल हक 365 न्यूज़। सर मेरा सवाल, जैसे आपने अप्रिशिएट किया पाकिस्तानी मीडिया को। 365 न्यूज़ के यहाँ भी जी सर, सर एज ब्यूरो चीफ में काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने मीडिया का जिक्र किया कि कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, सर आई अप्रिशिएट योर रोल एज वेल। जैसे आपने इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान का जो पॉलिसी थी उसको हाईलाइट किया। सर क्वेश्चन ये है कि जिस तरह कश्मीर के मसले को इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक रिफ्रेश हुआ है, वो मसला हाईलाइट हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर ट्वीट भी किया, तो अगर वो सालसी करते हैं और दोनों ममालिक को टेबल पे बिठाते हैं तो क्या बेस्ट ऑप्शन होगा पाकिस्तान के पास उसको रिजॉल्व करने के लिए? मैं समझता हूं कि अमेरिका ने प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़े तौर पे कहा है, बार बार कहा है कि अमन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, मीडिएशन होना चाहिए, कश्मीर का मसला से लेके तमाम मसले के हल होना चाहिए, और ये बड़े नेक ख्वाहिशात है। बल्कि पाकिस्तान ये समझते हैं ख्वाहिशात क्या, ये तो हमसे वादे किए गए, और प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड, एंड इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर ये कोशिश करेगा कि हम सब के दरमियान ये बातचीत हो और हम अमन की तरफ बढ़े। हम साथ ये भी नज़र आ रहा है कि भारत का जो पैगाम है, जो ऐलानात है, जो बयानात है, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इंडिया वांट्स टू सैबोटेज प्रेसिडेंट ट्रंप्स पीस एफर्ट्स, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगे, और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे में इस पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे। इसलिए ये दुनिया के इंटरेस्ट में है, कि दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए, रीजनल स्टेबिलिटी हो, ताकि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी हो और हम तरक्की की तरफ आगे बढ़े। आजकल जेके न्यूज़ के साथ काम कर रहे हैं। सर आपकी पार्टी का एक कश्मीर के बारे में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, सारी दुनिया उसे जानती है। क्या आप समझते हैं कि इस कन्फ्लिक्ट से मसला कश्मीर पे कुछ पेशरफ्त हो सकती है? क्या कश्मीरी कोई उम्मीद रखें आपसे कि इस सारे मामले से कश्मीर की आज़ादी की तरफ भी कोई हल की तरफ भी कुछ बढ़ेगा? जैसे कि पिछले दौर में ये मसला कश्मीर बिल्कुल सर्द खाने में चला गया था और एक समझा जा रहा था कि अब ये डेड इशू हो गया है, तो क्या आप कुछ कश्मीरी उम्मीद रखें कि इस मसले पे कुछ पेशरफ्त होगी? थैंक यू। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगर पाकिस्तान का हर सियासी जमात कश्मीर के हवाले से एक वाज़ेह पैगाम रखते हैं। इस जंग के सिलसिले में जो कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में सफारती सतह पे काफ़ी पेशरफ्त हुआ है, इस अंदाज से कि भारत ने 2019 के बाद ये समझा कि इन्होंने कश्मीर को एक अंदरूनी मसला में तब्दील कर दिया। जब प्रेसिडेंट ट्रंप इस जंग के बाद कहता है कि कश्मीर पे हमें मीडिएशन करना ज़रूरी है, तो कश्मीर का इशू अंदरूनी से लेके बैनुल-अक़वामी इशू बन जाता है।